Bismillahirrahmanirrahim. It's our 7th lecture from chapter 2. In this lecture we will study the role as well as the structure of root, stem and leaf in transport system. In lecture 6 we have the introduction of transport system. We also studied the absorption of water as well as the movement of water throughout the plant. And now we will discuss the structure of 3 major organs of plants and the role they play in transport system. To this lecture, the SLO that we will achieve is explain how the structure of the roots, stem and leaves of a plant permit the movement of water, food and gases. We all know that there are 3 major materials needed to be transported throughout the plant. Number 1 is food, which is prepared in leaves. Second one is water, which is absorbed from the soil through roots and is conducted throughout the plant. And the third one is gases, which is absorbed by the leaf and are released out there, and their exchange takes place through leaves only. Gases are not moved throughout the plant as the food and water do. So each material needed a specific structure for its movement. What are those structures? Let's see. We'll find the supportive material on our textbook page 28 as well as page 29 under the heading of 2.7, that is about movement of food, water and gases in plants. In this heading, actually the structure of these 3 organs will be discussed: leaf, stem and roots. First of all, leaf, which are the part of our root system and the major organ for the absorption of water from the soil, will be discussed. If you look at your figure 2.15 in your textbook, you will find the root system. A root system consists of different types of roots. Number 1 is the primary root, which arises from the radicle from the seed. As the seed germinates out, the primary root develops out the first. It is a major root, and in some cases it is also called taproot. It stores nutrients and is directly connected with stem. The other types of roots had no direct connection with stem. The second one is secondary root, which arises from primary root. As you can see here, secondary root is the extension of primary root, or you can say it is the branch of primary root or taproot. The third one is the tertiary root. It is primarily arise from the secondary root, but in some cases it has the connection with primary root. And in some cases, in some plants, a quaternary roots are also found. What are the quaternary roots? These are the roots which arise from the tertiary roots, and those are called क्वाटरनरी रूट. अब देख सकते हैं कि वो प्राइमरी रूट हो, सेकेंडरी रूट हो या टर्शरी रूट हो, इन पे छोटे छोटे से स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं, बिल्कुल स्मॉल थिन सी. ये स्मॉल प्रोजेक्शन एक्चुअली रूट हेयर हैं. रूट हेयर, जैसा कि हमने डिस्कस किया था अपने लास्ट लेक्चर में भी, एक्सटेंशन है एपिडर्मिस की. रूट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो रूट के स्ट्रक्चर में सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस की ही एक्सटेंशन या इसकी प्रोजेक्शन रूट हेयर्स हैं. ये रूट हेयर्स एक्चुअली सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं एक्चुअल रूट का. सरफेस एरिया इंक्रीज करने से गैसियस मूवमेंट या वाटर पार्टिकल्स की मूवमेंट एनहेंस हो जाती है. वाटर पार्टिकल्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट हैं, एक तो इस प्लांट को इनकरेज करने में मदद हेल्प आउट करते हैं, और दूसरा वाटर की एब्जॉर्प्शन का रेट ज़्यादा हो जाता है. और वो जो वाटर जो प्लांट के रूट हेयर्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, उसमें डिसॉल्व्ड मिनरल्स भी होते हैं. यानी रूट हेयर 3 पर्पसेस को हम सर्व करती है. नंबर 1 टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, नंबर 2 increase the absorption rate of water, and number 3 increase the absorption rate of minerals as well.
Through these root hairs, water and minerals enter into the plants and move throughout the root, and root then conduct these water and dissolved mineral to stem. So these structures in a root help the plant to absorb water and encourage the plant into the soil. But while discussing the structure of root, don't forget the process through which water is absorbed into the roots, that is osmosis. Osmosis is the advanced form of diffusion process. Osmosis, again we discussed, is the movement of particles from an area of higher concentration to an area of lower concentration. The higher concentration area in this system is external environment, that is root and water. Lower concentration area is the inside structure of root. Next comes the structure of stem. As we know, the stem conduct two types of material, water as well as food. Water is conducted through xylem and the food is transported through phloem. Xylem and phloem both are elongated vessels, long tubes extended throughout the plant from the tip of the root to the tip of the leaf, uppermost leaf. These two vessels are arranged side by side in the stem, as you can see here. This is the xylem and the adjacent cells are of phloem. Water moves up into the xylem through two forces. Number one is evaporation or the suction pressure, and the number two is adhesion or capillary action. Here is a description of adhesion, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल्स दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स को एडजस्ट करेगा और उसके साथ मूव अप होगा, फिर वो एक कोएलिसेंस वाटर मॉलिक्यूल नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन करके ऊपर की तरफ मूव करेगा. हाइड्रोजन, पानी के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन मौजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस कोहेजन को, इस कैपिलरी एक्शन को फेवर करती हैं. यानी एक पानी का, अगर आप वाटर का स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा हो, ये वाटर का ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये इस वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन किसी और वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ अटैच होगा. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली एक वाटर मॉलिक्यूल को दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट करती है और उसको पुल अप करती है, उसको प्रेशराइज करती है, उसको कंपेल करती है मूवमेंट के लिए. सो इस तरह से एडहेशन पानी को कंडक्ट करती है फ्रॉम द रूट्स टू द uppermost leaf. ये तो थी वाटर की कंडक्शन. अब फ्लोएम कैसे काम करता है, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं. दिस इज द फ्लोएम वेसल एंड इट इज द xylem वेसल. एक्चुअली जो फूड है वो प्रिपेयर की जाती है लीव्स में. ये सोर्स सेल लीफ जिसमें फूड प्रिपेयर की गई है शुगर की फॉर्म में. लीफ में भी जाइलम और फ्लोएम इसी तरह से प्रेजेंट होते हैं जिस तरह स्टेम में या फिर रूट्स में प्रेजेंट है. ये कंपेनियन सेल्स हैं जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट है जाइलम के साथ, फ्लोएम के साथ भी और लीफ सेल्स के साथ भी. यानी यहाँ से सोर्स सेल से जहाँ फूड प्रिपेयर की जाती है मूव करती है, डिफ्यूज कर देती है कंपेनियन सेल्स में. कंपेनियन सेल्स से ये फूड मूव करती है फ्लोएम में. फ्लोएम में आके ये कंसंट्रेटेड होती है एक जगह पे. समटाइम्स ये कंपेनियन सेल्स में कंसंट्रेट होती है, स्टे करती है फूड पार्टिकल्स कुछ देर के लिए. जैसे ही फूड पार्टिकल्स कंसंट्रेटेड फॉर्म में आ जाते हैं, एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, जाइलम से पानी फ्लो करता है फ्लोएम की तरफ. ये ट्रांसपरेशनल वाटर ऑफ स्ट्रीम था वाटर में, जाइलम में. यहाँ से पानी मूव किया फ्लोएम की तरफ. ये पानी इस कंसंट्रेटेड फूड के साथ मिलकर एक सोल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा. इससे जब ये सोल्यूशन बन जाएगा फूड और वाटर का, इट मीन्स इसकी मूवमेंट इजी हो गई है. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि माउथ में सलाइवा फूड के साथ मिलकर एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे बोलस कहा जाता है. और ये पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर यानी बोलस, इसकी मूवमेंट थ्रू द एसोफेगस एंड इन द स्टमक बिकम्स वेरी इजी. बिल्कुल इसी तरह कंसंट्रेटेड फूड पार्टिकल जब वाटर के साथ मिलते हैं तो एक सॉल्यूशन की फॉर्म में आ जाते हैं. ये सॉल्यूशन फॉर्म
इजीली मूव कर सकती है नीचे भी और ऊपर की तरफ भी। लिहाजा जैसे ही वाटर सॉल्यूशन की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है डाउनवर्ड, अब जहां जहां फूड की जरूरत होगी ये फ्लोएम सेल उस फूड को वहां ट्रांसपोर्ट कर देंगे। और अगर मेजर डिफरेंस देखें फ्लोएम सेल का और जाइलम सेल का, तो आप देखेंगे कि फ्लोएम सेल में कंपेनियन सेल्स अटैच हैं, जबकि जाइलम में कंपेनियन सेल्स अटैच नहीं है। अब कंपेनियन सेल क्या करते हैं, ये कनेक्शन, these companion cells are the connection between phloem and the source cell. The source cells contain food that comes from the leaf. इसी तरह जब ये फूड सोल्यूशन रूट्स तक पहुंचेगा तो ये जो फूड सोल्यूशन है इसमें मौजूद फूड डिफ्यूज कर जाएगी रूट्स की तरफ, या जिस जिस सेल को फूड रिक्वायर्ड है वहां तक ये चली जाएगी। इस तरह से फूड और पानी स्टेम में मूव करते हैं और स्टेम का स्ट्रक्चर इन दोनों मटेरियल्स की मूवमेंट को फेवर अप करेगा। नेक्स्ट कम्स द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अब लीफ में जिन मटेरियल्स ने मूव करना है वो 3 हैं। नंबर 1 फूड which is prepared at the leaf and is needed to be transported to stem and to leaf to roots. अब फूड की प्रिपरेशन के लिए 2 चीजें रिक्वायर्ड हैं, एक गैसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरी चीज जो फूड की प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है वो वाटर है। वाटर आएगा रूट से और गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम एयर। अब वाटर का रूट तो आप देख चुके हैं कि वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है रूट्स में और कैसे कंडक्ट किया जाता है लीव्स तक, लेकिन गैशियस एक्सचेंज के लिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो कनेक्ट करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी एयर में। वाटर की कंडक्शन और फूड की ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड द लीव्स जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ही होती है। फ्लोएम इज स्पेसिफाइड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड whereas xylem is specific for the transportation of water, and its root and movement chemistry is same as was in the root and in the stem, but for the transportation of gases there are specialized structures which are called stomata. It is a stomata, this is the second stomata. These stomata are mainly present at the lower surface of cell. इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू वाटर इवेपोरेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में इंटर होती है और ऑक्सीजन प्लांट्स लीफ से बाहर चली जाती है। सो ये 3 तरह के पर्पस सर्व करता है। अब स्टोमेटा की ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए हर स्टोमेटा के गिर्द गार्ड सेल्स प्रेजेंट हैं। These are the guard cells and this one is the stomatal opening. गार्ड सेल्स की मूवमेंट, इनका ओपनिंग और क्लोज होना स्टोमेटल ओपनिंग को ओपन या क्लोज करता है एज पर द रिक्वायरमेंट। और इन स्टोमेटल सेल्स का लोअर सरफेस पे मौजूद होना एपिडर्मिस में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन को लोअर डाउन करता है। इन केस ऑफ वाटर डेफिशिएंसी these stomata or guard cell close and the movement of materials yani gases movement of materials which material gases as well as water movement particles check out. No materials takes place during this situation. There is an other structure that helps out to prevent the water loss. This specific structure is the waxy cuticle present on the upper surface of the leaf. It is a waxy cuticle. वैक्सी क्यूटिकल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी सरफेस पे ग्रीस ऐड कर दी जाए। इस वैक्सी क्यूटिकल की वजह से इवेपोरेशन रेट बहुत स्लो हो जाता है और वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जाता है। स्टोमेटा सिर्फ लीफ के निचले वाली सतह पे नहीं प्रेजेंट होते बल्कि लीफ की सरफेस पे भी प्रेजेंट है, लेकिन at the lower surface of leaf the number of stomata is very less. It also serves to reduce the water loss.
अब जब गैस लीफ में एंटर हो जाती है तो क्वेश्चन इज वो कहाँ रिजाइड करती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग के थ्रू आ जाती है तो ये गैसेस लीफ के दरमियान स्पॉन्जी में, ये आपको दो तरह के सेल दिखाई दे रहे हैं, ये स्पॉन्जी मेसोफिल्स हैं और ये पैलिसेड मेसोफिल। अब कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन इन सेल्स के दरमियान जो एयर स्पेसेस प्रेजेंट हैं यहाँ पे मौजूद होती है और एज पर रिक्वायरमेंट सेल इसे एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से एक लीफ का स्ट्रक्चर अडेप्टेबल है गैसेस के मूवमेंट के लिए, वाटर की मूवमेंट के लिए और फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यहाँ हमने अपना SLO अचीव कर लिया है। अब हम आते हैं इसकी प्रैक्टिस की तरफ या एक्सरसाइज की तरफ। पेज 30 पे देखिए, रिव्यू एक्सरसाइज 2 आपको मिलेगी। इस रिव्यू एक्सरसाइज का पार्ट ए क्वेश्चन है, फिल द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट दी गई है जिसके 4 ऑप्शंस हैं। आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ने के बाद राइट आंसर फाइंड आउट करना है। 4th क्वेश्चन तक आप लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम नंबर 5th MCQ सॉल्व करेंगे, विच इज नेम द एडजेसेंट पार्ट ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा are the special openings at the epidermis of the leaf that allow the gaseous exchange, but the opening and closing of stomata is regulated by a special type of cell. What are those cells? Are they guard cells, stomata, mesophyll और chloroplast? अगर आप इन तमाम की फंक्शन और लोकेशन पे गौर करेंगे तो आप राइट आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द पार्ट बी, आंसर दिस क्वेश्चन ब्रीफली। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़िए और फिर इनको ब्रीफली डिस्क्राइब करें। नंबर 4th क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा इन लीव्स। नंबर 4th क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे अपने आज के लेक्चर के लिए। देन कम्स द रिव्यू एक्सरसाइज ऑन पेज 31। नंबर 9 क्वेश्चन आप इसका सॉल्व करेंगे। हाउ विल यू लेबल द स्पेशल ओपनिंग्स दैट अलाउ गैसियस एक्सचेंज इन लीव्स। हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि लीव्स में गैसियस एक्सचेंज के लिए स्पेशल ओपनिंग्स हैं। उन ओपनिंग्स को आपने फाइंड करना है, गार्ड सेल्स, स्टोमेटा, मेसोफिल सेल्स या क्लोरोप्लास्ट। नंबर 10th MCQ इज व्हाट फीचर इज स्पेशलाइज्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस इन लीव्स। लीफ में वाटर लॉस को रोकने के लिए 2 तरह के स्ट्रक्चर्स थे। एक तो गार्ड सेल्स थे जिनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा के साथ गैसियस एक्सचेंज को प्रिवेंट करती थी या वाटर लॉस को। एक और भी स्ट्रक्चर जो हमने स्टडी किया था उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, क्या वो वेक्सिक्यूटिकल है, रूट हेयर है, एपिडर्मिस है या स्टोमेटा है। पार्ट बी देखिए, पार्ट बी में आप क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। अब फूड की ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में कैसे होती है ये आपने फाइंड करना है। अभी आपने पढ़ा कि फूड की ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के थ्रू होती है, लेकिन फ्लोएम के थ्रू क्या मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में आप बयान करेंगे। पार्ट सी देखेंगे तो इसका क्वेश्चन 7 हम सॉल्व करेंगे। हाउ डू द स्ट्रक्चर्स ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स ऑफ अ प्लांट परमिट द मूवमेंट ऑफ फूड, वाटर एंड गैसेस। इस क्वेश्चन को आप इन डिटेल स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आप रूट की डायग्राम बनाएंगे, आप स्टेम की डायग्राम्स बनाएंगे और लीफ की डायग्राम बनाएंगे अपने क्वेश्चन को अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। इसके बाद आइए अपने होम समर पैक की तरफ। समर पैक में चैप्टर 2 में आप SLO 7 सॉल्व करेंगे, which is explain how the structures of roots, stem and leaves of a plant permit the movement of water, gas and gases। पहले की तरह जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, आप बताएंगे कि ये SLO आपको कहाँ सॉल्व होगा, बुक का नाम बताएंगे, पेज नंबर बताएंगे और हेडिंग नंबर बताएंगे। फिर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वाई डू वी स्टडी दिस SLO। इससे आपको पर्पस पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर SLO को स्टडी करना क्यों बेनिफिशियल था। देन यू विल सॉल्व द एक्टिविटी 2.5। फ्रॉम द गिवन पिक्चर डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन। इस पिक्चर को आप गौर से ऑब्जर्व कीजिए और फिर बताइए कि ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल टू द रिलीज ऑफ वाटर इन द एनवायरमेंट। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन से प्रोसेसेस या फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व हैं, ये सब आप डिस्कस करेंगे।
इसके बाद आते हैं अपने MCQ सेक्शन की तरफ। नंबर 23 MCQ, थर्ड MCQ देखिए, एयर स्पेसिस आर प्रेजेंट बिटवीन। अब एयर स्पेसिस जब लीफ में प्रेजेंट होती हैं, लीफ के सेल के दरमियान, लेकिन वो कौन कौन से सेल्स हैं? स्पॉन्जी मेसोफिल और पेलिसेड मेसोफिल, लीफ एंड स्टेम्स, स्टोमेटा एंड मेसोफिल सेल्स, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। राइट आंसर, आप अगर आप लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप इजीली राइट आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने रीजन भी बताएंगे कि आपने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर क्यों चूज किया। नंबर 24th क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्व। अब ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस क्या है? ट्रांसलोकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड की ट्रांसपोर्टेशन की जाती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट, और ये किसके थ्रू होती है? जाइलम में होती है, स्टोमेटा में होती है, लीफ में होती है या फ्लोएम में होती है। राइट आंसर को आप मार्क करेंगे और फिर उसकी रीजन भी बताएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आंसर सेक्शन, इसका क्वेश्चन नंबर 10 आप सॉल्व करेंगे। हाउ कैन यू से दैट जाइलम इज डिफरेंट फ्रॉम फ्लोएम इन प्लांट टिश्यू। अब जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस अभी हमने पढ़ा, इसकी पिक्चर भी देखी, डायग्राम के थ्रू भी ऑब्जर्व किया, सो आप इजीली इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। फिर आप अपना क्वेश्चन देखिए 22nd, हाउ इज ट्रांसलोकेशन प्रोसेस डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। Translocation process, which is the movement of food, is different from the movement of water inside the plant. इन दोनों का comparison आप करेंगे। How do leaf act as a respiratory organ of plant? What is respiration? Respiration is the breathing process actually. And what is the breathing? Breathing in humans means inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide, whereas the process inverse, the gases inverse when we talk about plants. In plants, carbon dioxide is inhaled, whereas oxygen is exhaled out as byproduct. So, लीफ में इन दोनों गैसेस का एक्सचेंज, यानी लीफ में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस कैसे होता है, इसको आप ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। इफ पॉसिबल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एज वेल। Number 24th question is, what do you think will happen if xylem and phloem are absent in plants? Xylem and phloem are two main structures for the conduction of materials, that is water and food. If by any reason these two structures are removed out from the plant, how will it affect the plant? You will have to describe in detail, and then you will achieve the SLO